Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to explain you non-farming activities in the village Palampur. Yet now we have studied about the farming activities in the village Palampur. So today we will come to know about some non-farming activities in village Palampur. So dear friends, we have learnt about the farming as the main productions activity in Palampur. We shall now take a look at some of non-farm productions activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज, प्रोडक्शंस एक्टिविटीज के बारे में जो विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grow during the rainy season. So dear students, पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, वहाँ का एक जो है कॉमन एक्टिविटीज़ है। लोग अपने भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी के रूप में खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण यानी कि दूध संग्रह करने का एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। So dear students, dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajras that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. 2 traders from Shahpur town have set up collections from chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. So dear students, let's discuss. अब हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। An example of small scale manufacturing in Palampur. Dear students, at present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. वर्तमान समय में पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण के कार्य में जो है लगे हैं इस समय। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। So dear students, unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method. सबसे आसान जो है विधियों को, उत्पादन की विधियों का प्रयोग पालमपुर में जो है विनिर्माण के लिए किया जाता है and are done on a small scale, और इसे जो है छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. प्यारे विद्यार्थियों, विनिर्माण का कार्य पारिवारिक
श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। नाउ वी विल रीड द स्टोरी ऑफ मिसरी लाल एंड करीम। मिसरी लाल और करीम की जो कहानी हम जो पढ़ेंगे, पहले मिसरी लाल की कहानी जो जानते हैं। मिसरी लाल हैज परचेज्ड a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set up on his field। मिसरी लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो कि बिजली से चलती है और इसे अपने खेत में मिसरी लाल ने लगाया है। Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days। Misri Lal also buys sugarcane from other farmers and process it into jaggery। The jaggery is then sold to traders at Shahpur। In the process, Misri Lal makes a small profit। प्यारे विद्यार्थियों, मिसरी लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और मिसरी लाल ने उस गन्ना पेरने वाली मशीन को अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ना को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिसरी लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिसरी लाल को थोड़ा लाभ होता है, तो मिसरी लाल थोड़ा बहुत जो है लाभ कमा लेता है इससे। अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी और वी विल डिस्कस और वी विल रिवाइज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के दुकानदार। So dear students, shopkeeping is also one of the non-farming activities, non-farming productions activities। तो पालमपुर में दुकानदार, the shopkeepers of Palampur, people involved in trade exchange of goods are not many in Palampur। प्यारे विद्यार्थियों, पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ले आकर बेचते हैं। So dear students, people involved in a trade exchange of goods are not many in Palampur। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candle, notebooks, pen, pencil, even some clothes। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shops। They sell eatables। खाने की चीज बेचते हैं। अब हम करीम की कहानी जानेंगे। Dear student, Karim has opened a computer class center in the village। करीम ने अपने गांव में एक कंप्यूटर क्लास जो है सेंटर खोल रखा है, कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town। Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town। करीम ने जो देखा कि कई जो क्षेत्र हैं, गांव के कई छात्र शहर की
कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। इससे करीम को बहुत फायदा हुआ, इससे समाज को भी फायदा हुआ, इससे करीम को जो अतिरिक्त आय भी हो जाती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, करीम ने देखा कि इन रिसेंट ईयर्स a large number of students have been attending college in Shahpur town. So Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in the village who had a degree in computer application. So he decided to employ them. He bought computer and set up the classes in the front room of their house, overlooking the market. High school students have started attending them in the good numbers. Now we will study about take a look of transport in village Palampur. Dear students, transport a fast developing sector. पालमपुर में और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to रायगंज। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर and people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport service. The ferry people and goods from one place to another. They carry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. So dear students, पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ी चलाने वाले लोग, वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से क्या करते थे, वे लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब हम लोग किशोरी की कहानी पढ़ेंगे। किशोरी इज अ फार्म लेबरर। किशोरा यह क्या है, किशोर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग किशोर के बारे में पढ़ेंगे। किशोर इज अ फार्म लेबरर। किशोर क्या है, फार्म लेबरर है, खेतिहर मजदूर है किशोर। लाइक अदर सच लेबरर्स, अन्य ऐसे ही श्रमिकों की बात किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। लाइक अदर लेबरर्स, Kishore found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. A few years back, Kishore took a loan from the bank. कुछ साल पहले किशोर ने जो बैंक से लोन लिया, यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवार को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसे अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली उसने, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ या अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उस परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। सो डियर स्टूडेंट्स, किशोर इज अ फार्म लेबरर। किशोर एक खेतिहर जो मजदूर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, अन्य जो है मजदूरों की तरह ही किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड।
कोई जो मजदूरी का पाता है उससे वो अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, उसको परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। सो ही हैज टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, उसने बैंक से जो है लोन लिया, जो कि सरकारी जो है कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। So a few years back Kishore took a loan from the bank. This was under the government program which was giving a cheap loan to the poor landless households. Kishore bought a buffalo with the money. With the help of this money, he now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and use it to transport various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to the shop with the load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishore is able to earn more than what he used to do some years back. Now dear students, let's have a look of short summary of the chapters. The story of village Palampur. So dear students, farming is the main production activity in village Palampur. Palampur में farming main activities है. Over the years there have been many important changes in the way farming is practiced. वहाँ पे जो है खेती की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे जो बदलाव आए, परिवर्तन जो आए हैं पिछले जो है वर्षों में। क्या क्या परिवर्तन आए हैं इसके बारे में भी जो है हम लोग जो अच्छी तरीके से जो जाने। तो गांव में खेती, पालमपुर के गांव में खेती उत्पादन मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। So over the years there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmer to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement since land is fixed and scarce, but in rising productions a great deal of pressure has been put on the land and other natural resources. प्यारे विद्यार्थियों, पालमपुर गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, क्योंकि भूमि अस्थायी है, बिकॉज लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केर्स, तथा दुर्लभ। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। The new ways of farming needs less land but much more of capital. The medium and large farmers are able to use their own saving from productions to arrange for capital during the next seasons. On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of the total farmers in India, find it difficult to obtain capital. Because of the small size of their plots, their production is not enough. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own saving and have to borrow. Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as a farm laborers to feed themselves and their families. तो प्यारे विद्यार्थियों, खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझौले और जो बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो कि भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। इसका जो कारण है, इनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण इनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी और
की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट वुड बी आइडियल इफ न्यू ways of farming use much more labor. Unfortunately, such a thing has not happened. The use of labor on farm is limited. The labor looking for opportunity is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. Some labor has entered the non-farm sectors in the village. तो प्यारे विद्यार्थियों, श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक और प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की जो तलाश में श्रमिक पास पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में यानी नॉन फार्मिंग में काम करना प्रारंभ कर दिया है। एट प्रेजेंट the non-farm sector in the village is not very large. Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 25 are engaged in the non-farm activities. Though there is a variety of non-farm activities in the village, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. तो प्यारे विद्यार्थियों, इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों के गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द फ्यूचर्स one would like to see more non-farm production activities in the village. Unlike farming, non-farm activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities. How does one obtain this capital? One can either use his own saving, but more often has to take a loan. It is an important that the loan be available at low rate of interest, so that even people without saving can start some non-farm activities. Okay, that's all. Thank you for listening. Have a great day to all of you. Wish you all the best.